ये है अमाइंस। तो इसमें आगे क्लासिफाई द फॉलोइंग अमाइंस विद द प्राइमरी, सेकेंडरी और द टर्शियरी। तो ये वाला जो होगा ये होगा पहला और तीसरा जो हो जाएगा ये प्राइमरी अमाइन होगा। फिर चौथा जो होगा वो हो जाएगा सेकेंडरी अमाइन, और दूसरा जो हो जाएगा ये हो जाएगा टर्शियरी अमाइन। नेक्स्ट है कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द डिफरेंट आइसोमेरिक अमाइंस कॉरस्पॉन्डिंग टू द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H11N। राइट IUPAC नेम ऑफ ऑल द आइसोमर और what type of isomer is equal by the different pairs of the amines। तो पहला एंड दूसरा the structure and their IUPAC names of different isomeric amines corresponding to the molecular formula C4H11N are given as C3 C2 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 NH2। ये हो गया ब्यूटेन 1 डिग्री अमाइन। C3 C2 CH NH2 C3 हो गया ब्यूटेन 2 डिग्री अमाइन। फिर आता है C3 CH C3 C2 NH2 हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन 1 डिग्री अमाइन। और फिर इसमें आ जाता है ये वाला है C3 NH2, ये होता है 2 मिथाइल प्रोपेन 2 डिग्री अमाइन। फिर आता है C3 C2 NH C3, ये होता है N मिथाइल प्रोपेन 2 डिग्री अमाइन। फिर आता है C3 NH C2 होता है N इथाइल Mn 2 डिग्री अमाइन। नेक्स्ट है कि C3 NH C3 हो गया N मिथाइल प्रोपेन 2 डिग्री अमाइन। फिर आता है C3 C3 होता है NN डाइमिथाइल इथेन अमाइन 3 डिग्री। The pair of A and B and E and G exhibit the position isomerism. The pair of A and C, A and D, B and C and B and D exhibit the chain isomerism. The pair of C and F and G exhibit the metamerism. All pair B amines with the functional isomerism with the secondary and the tertiary amine and the vice versa. Next है कि how will convert the बेंजीन into the aniline। तो बेंजीन लिए उसमें HNO3H और HNO के साथ नाइट्रेशन किए तो बन गया NO2। H2PD इथेनॉल लिए तो बन गया एनिलीन। फिर आता है बेंजीन इंटू द NN डाइमिथाइल एनिलीन। तो ये बेंजीन लिए HNO3H2 नाइट्रेशन करेंगे तो बन जाएगा NO2। फिर H2PD इथेनॉल लेंगे तो बन जाएगा एनिलीन। फिर C3 फिल मिलेंगे तो NH C3 बन जाएगा। फिर C3 लेंगे तो NN डाइमिथाइल एनिलीन बन जाएगा। नेक्स्ट है Cl C2 Cl इंटू द हेक्सेन 1,6 डायमंड। तो ये हो गया 1,4 डाइक्लोरोब्यूटेन। ठीक है, इथेनॉलिक NF लेंगे तो बन जाएगा N डबल ट्रिपल बॉन्ड C2 फिर ट्रिपल बॉन्ड N। पर H2 लेंगे तो बन जाएगा NH2 C2 C2 NH2 यानी हेक्सेन 1,6 डायमाइन। नेक्स्ट है कि अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ C2H5NH2 C6H5NH2 NH3 C6H5 C2NH2 and C2H52 के NH। तो considering the inductive effect of the alkyl group NH3 C2H5NH2 C2H5 NH can be arranged in increasing order of the basic strength as हो जाएगा C2H5 NH फिर C2H5NH2 और फिर NH3। Again C6H5NH2 can have the proton acceptability less than the NH3, thus we have C2H5 NH C2H5NH2 NH3 और फिर आता है C6H5NH2। तो due to the minus effect of the C6H5 group, the electron density on the N atom in the C6H5 C2NH2 is lower than that on the N atom in the C2H5NH2 but more than that in the NH3. Therefore, the given compounds can be arranged in the order of the basic strength as C2H5 2NH फिर C2H5NH2 C6H5 C2NH2 फिर NH3 फिर C6H5 NH2 आता है। फिर दूसरा में आता है कि considering the inductive effect and the steric indents of the alkyl group C2H5NH2 C2H5 के 2NH2 and their basic strength follow। तो आता है C2H5 के 2NH C2H5 के 3N और C2H5NH2। तो again due to the minus effect of the C6H5 group, the electron density on the N atom in the C6H5NH2 is lower than that on the N atom in the C2H5NH2. Therefore, the basicity of the C6H5NH2 is lower than that of the C2H5NH2. And so the given compound can be arranged in the increasing order of the basic strength as follow। तो हो जाएगा C2H5 के 2NH फिर C2H5 के 3N फिर C2H5 के NH2 और C6H5 के NH2। फिर आता है कि considering the inductive effect and the steric indents of the alkyl group C3NH2 C3 के 2NH and the C3 के 3N can be arranged in the increasing order of the basic strength as C3 के 2NH फिर C3NH2 फिर C3 के 3N आ जाएगा। फिर आता है in the C6H5NH2 N is directly attached to the benzene ring. Thus, the lone pair of the electrons on the N atom is delocalized over the benzene ring. In the C6H5 C2NH2 N is not directly attached to the benzene ring. The fifth lone pair is not delocalized over the benzene ring. And therefore, the electrons on the N atom are more easily available for the protonation in the C6H5 C2NH2 than in the C6H5NH2. That means the C6H5 C2NH2 is more basic than the C6H5 NH2. Again, due to the minus effect of the C6H5, the electron density on the N atom in the C6H5 C2NH2 is lower than that on the N atom in the C6 C3 K3N. Therefore, the
CH3 के 3N is more basic than the C6H5 C2NH2. Thus the given compound can be arranged in increasing order of the basic strength as हो जाएगा CH3 के 2NH, फिर CH3NH2, CH3 के 3N, फिर आ जाएगा C6H5 C2NH2 और फिर आ जाएगा C6H5NH2. नेक्स्ट है कि कंप्लीट द फॉलोइंग एसिड बेस रिएक्शन एंड नेम द प्रोडक्ट्स. तो C3C2 C2NH2 प्लस HCl, तो ये बन जाएगा, ठीक है, N प्रोपाइल अमाइन. फिर C2H5 के 3NHCl, तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा ये, ठीक है. ये है N प्रोपाइल अमाइन से हम बना दिए हैं N प्रोपाइल अमोनियम क्लोराइड बनाते हैं. आगे फिर आता है कि राइट द रिएक्शन ऑफ द फाइनल अल्काइलेशन प्रोडक्ट ऑफ द एनिलीन विद द एक्सेस ऑफ द मिथाइल आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ द सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन. एनिलीन रिएक्ट्स विद द मिथाइल आयोडाइड टू प्रोड्यूस द N डाइमिथाइल एनिलीन. NH2 एनिलीन हो गया, C3I तो बन जाएगा NC3H C3I NC3C3 यानी N डाइमिथाइल एनिलीन बन जाता है. तो एक्सेस ऑफ द मिथाइल आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ द Na2CO3 सॉल्यूशन N डाइमिथाइल एनिलीन प्रोड्यूस द NNN ट्राई मिथाइल एनिलियम कार्बोनेट. तो NC3C2 C3I तो बन जाएगा C3I माइनस Na2CO3 करेंगे तो बन जाएगा NNN ट्राई मिथाइल एनिलियम कार्बोनेट बन जाएगा. नेक्स्ट है कि राइट दी केमिकल रिएक्शन ऑफ एनिलीन विद द बेंजोइल क्लोराइड एंड राइट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड. तो ये हो गया एनिलीन, इसमें बेंजोइल क्लोराइड लेंगे बेस, तो ये बन जाएगा N फिनाइल बेंजाइमाइड. आगे है कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द डिफरेंट आइसोमर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H9N. राइट IUPAC नेम ऑफ द आइसोमर व्हिच विल लिबरेट द नाइट्रोजन गैस ऑन द ट्रीटमेंट विद द नाइट्रस एसिड. तो द स्ट्रक्चर ऑफ द डिफरेंट आइसोमर कॉरस्पॉन्डिंग टू द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H9N आर गिवन C3C2 C2NH2. तो ये हो गया प्रोपेन 1 डिग्री अमाइन. फिर हो गया C3CHNH2 C3 हो गया प्रोपेन 2 डिग्री अमाइन. फिर आ गया N मिथाइल इथेन अमाइन 2 डिग्री हो गया. फिर आता है N डाइमिथाइल मीथेन अमाइन 3 डिग्री हो गया. तो 1 डिग्री अमाइन propane 1 amine and the propane 2 amines will liberate the nitrogen gas on the treatment with the nitrous acid. जो हो गया propane 1 amine प्लस HNO2 बन जाएगा propane 1 oil. फिर propane 2 amine, ठीक है, बन जाएगा propane 2 oil प्लस N2 प्लस HCl. फिर आता है कि convert the 3 methyl aniline into the 3 nitrotoluene. तो हो गया 3 methyl alanine प्लस NaO2 प्लस HCl, तो बन जाएगा N2 प्लस Cl माइनस और C3. फिर HBF कर देंगे तो बन जाएगा NaO2. फिर हीट करेंगे तो NO2 प्लस C3 3 नाइट्रोटोलिन प्लस N2 प्लस NaBF4 बन जाएगा. फिर एनालिन इंटू द 135 ट्राइब्रोमोबेंजीन. तो ये हो गया एनालिन Br2H2 कर देंगे तो ये बन जाएगा. फिर Na2H कर देंगे तो Na2 प्लस Cl माइनस, और फिर यहाँ पर ये लिया देंगे तो यहाँ पर फिर OH नहीं आएगा बल्कि सिर्फ H आएगा, तो बन जाएगा 135 ट्राइब्रोमोबेंजीन. अगला सवाल है कि राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स एंड क्लासिफाई देम इनटू द प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन. तो C3 ये जो हो जाएगा ये मिथाइल 1 मिथाइल इथेन अमाइन है 1 डिग्री अमाइन है. ये जो है ये प्रोपेन 1 अमाइन है यानी 1 डिग्री अमाइन है. फिर C3NH3 C3 के 2 ये जो है N मिथाइल 2 मिथाइल इथेन अमाइन है यानी 2 डिग्री अमाइन है. C3 के 3 CHNH2 ये जो हो जाएगा ये 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन यानी कि 1 डिग्री अमाइन भी हो जाएगा. फिर इसमें आ जाएगा C6H5NH3 ये जाएगा N मिथाइल बेंजाइमाइन और N मिथाइल एनिलीन 2 डिग्री अमाइन. फिर C3CH2 के 2 NC3 ये हो जाएगा N मिथाइल इथेन अमाइन यानी 3 डिग्री अमाइन. फिर MBr C6H4NH2 तो हो जाएगा 3 ब्रोमो बेंजाइमाइन और 3 ब्रोमो एनिलीन और 1 डिग्री अमाइन. Next, give one chemical test to distinguish between the following pairs of compounds: methylamine and the dimethylamine. तो methylamine and the dimethylamine can distinguished by the carbylamine test. Carbylamine test होता है कि aliphatic and aromatic primary amines on heating with the chloroform and the ethanoic potassium hydroxide form the fall-smelling isocyanates for the carbylamines. Methylamine, being an aliphatic primary amine, give a positive carbylamine test, but dimethylamine does not. तो C3NH2 CH3 plus 3KOH देखा C3NC प्लस 3KCl प्लस H2 यानी मिथाइल आइसोफाइनाइड फॉल स्मेल जिसका आता है. फिर C3 के 2NH CH3 प्लस 3KOH का कोई रिएक्शन नहीं होगा. तो सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय अलाउइंग देम टू रिएक्ट विद द हिंसबर्ग रिएजेंट बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड C6H5SO2Cl. फिर आता है कि सेकेंडरी अमाइन रिएक्ट विद द हिंसबर्ग रिएजेंट टू फॉर्म अ प्रोडक्ट दैट इज इनसॉल्युबल इन एन अल्कली. फॉर एग्जांपल NN डाइइथाइल अमाइन reacts with the Hinsberg reagent to form the NN diethyl benzene sulfonamide which is insoluble in alkali. Tertiary amine however do not react with the Hinsberg reagent. तो ये हो गया बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड. फिर आता है NN diethyl benzene sulfonamide आ जाता है. तो इथाइल अमाइन एंड एनिलीन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड ड्यूरिंग द एजोडाइट टेस्ट. ए डाई इज ऑब्टेन्ड विद एन aromatic amine react with HNO2 NaNO2 plus dilute HCl at 0.5 degree Celsius followed by a reaction with an alkaline solution of the 2-naphthalol. Dye usually yellow, red or orange in the color. Aliphatic amines give a brief difference due to the evolution of the N2 gas under the similar condition. तो NH2 फिर HONO ऐसा लिखते हैं तो ये बन जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड. फिर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और 2 नैप्थोल तो डाइल्यूट NOH बन जाएगा
1 फिनाइल एजो 2 नेप्थोल यानी कि ऑरेंज डाई। इसके बाद फिर आता है कि C2 NH2 फिर HONO तो बन जाएगा C2H5OH into और H2O। Aniline and the benzene amine can be distinguished by their reaction with the help of the nitrous acid, which is prepared in situ from mineral acid and sodium nitrate. Benzylamine reacts with the nitrous acid to form the unstable diazoxide salt, which in turn gives the alcohol with the evolution of the nitrogen gas। तो ये होता है benzylamine C6H5 C2NH2 फिर HNO2 NNO2 HCl करेंगे तो बन जाएगा अनस्टेबल C6H5 C2 N2 प्लस Cl माइनस फिर N2 और C6H5 C2 OH और HCl यानी बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा। तो ऑन द अदर हैंड aniline reacts with the HNO2 at a low temperature to form the stable diazonium salt, thus nitrogen gas is not involved। फिर आता है C6H5Na2 NN2 HCl 273 फिर 2 अथर कम करेंगे तो C6H5N2 प्लस Cl माइनस NaCl प्लस 2H2 बनता है। तो aniline and the N-methyl aniline can be distinguished using the carbylamine test. Primary amines on the heating with chloroform and ethanolic potassium hydroxide form the fall of smelling isocyanates for the carbylamines. Aniline, being an aromatic primary amine, give the positive carbylamine test. However, N-methyl aniline, being a secondary amine, does not। तो ये हो गया बेंजीलामाइन, ठीक है। C6H5NH2 फिर CH3 प्लस 3 को ऐड करेंगे तो बेंजील आइसोसाइनाइड यानी फॉल ऑफ स्मेल आएगा C6H5NC। फिर N-methyl aniline है, इसमें कोई रिएक्शन है जो नहीं आता है। फिर आता है कि अकाउंट फॉर द फॉलोइंग pKb ऑफ एनिलीन मोर देन दैट ऑफ द मिथाइलामाइन। तो pKb ऑफ एनिलीन मोर देन दैट ऑफ द मिथाइलामाइन, ये हो गया एनिलीन, ये हो गया मिथाइलामाइन। फिर आता है इथाइन, इसका रीजन क्या हो गया। तो एनिलीन अंडरगो द रियोनेंस एंड रिजल्ट द इलेक्ट्रॉन्स ऑन द एन एटम आर डिलोकलाइज्ड ओवर द बेंजीन रिंग, देयरफॉर द इलेक्ट्रॉन्स ऑन द एन एटम आर लेस अवेलेबल टू द डोनेट। फिर ऑन द अदर हैंड इन द केस ऑफ द मिथाइलामाइन ड्यू टू द बटरफ्लाई इफेक्ट ऑफ द मिथाइल ग्रुप, electron density on the N atom increased. As a result, aniline is less specific than the methylamine. Thus, pKb of the aniline is more than that of the methylamine। फिर आता है कि ethylamine is soluble in the water, whereas aniline is not। तो ethylamine is soluble in the water, whereas aniline is not। Ethylamine, when added to the water, forms the intermolecular H bonds with the water, hence it is soluble in the water। But aniline does not undergo the H bonding with water to very large extent due to the presence of a large hydrophobic C6H5 group। hence aniline क्या होता है तो insoluble in water होता है। तीसरा है कि मिथाइल अमाइन इज इन द वाटर रिएक्ट विद द फेरिक क्लोराइड टू प्रिसिपिटेट हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। तो आता है कि मिथाइल अमाइन इन द वाटर रिएक्ट विद द फेरिक क्लोराइड टू द प्रिसिपिटेटेड हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, यानी C3Na2 मिथाइल अमाइन और HOH। तो ड्यू टू द प्लस इफेक्ट ऑफ द C3 मिथाइल अमाइन इज मोर बेसिक देन द वाटर, देयरफॉर इन द वाटर मिथाइल अमाइन प्रोड्यूसेस OH माइनस आयन बाय अफेक्टिंग द H प्लस आयन फ्रॉम द वाटर। तो C3NH2HOH बनता है C3NH3 प्लस OH माइनस। फेरिक क्लोराइड FeCl3 डिसोसिएट्स इन वाटर टू फॉर्म द Fe3 प्लस एंड Cl माइनस आयन FeCl3 Fe3 प्लस 3 Cl माइनस आयन बन जाता है। देन द OH माइनस आयन रिएक्ट विद Fe3 प्लस आयन टू फॉर्म ए प्रेसिपिटेट ऑफ द हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। तो Fe3 प्लस प्लस 6 OH माइनस बन जाएगा Fe2O3.3H2 यानी हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा। फिर चौथा में है कि although the amino group is orthopyrite acting in aromatic electrophilic substitution reaction, aniline on nitration gives a substantial amount of the M-nitroaniline। तो चौथा में आ जाएगा कि although amino group is orthopyrite acting in aromatic electrophilic substitution reaction, aniline on the nitration gives a substantial amount of the M-nitroaniline। Nitration is carried out in the acidic medium. In the acidic medium, aniline is opportunity to give the aniline ion which is meta acting। तो ये हो गया aniline, aniline ion HNO3 और ये हो गया meta-nitroaniline। For this reason, aniline on the nitrogen gives a substantial amount of the meta-nitroaniline। फिर आता है कि aniline does not undergo the Friedel-Crafts reaction। तो कहता है कि aniline does not undergo the Friedel-Crafts reaction। A Friedel-Crafts reaction is carried out in the presence of the L-Sil3, but L-Sil3 is acidic in the nature, while aniline is a strong base। Thus, aniline react with the L-Sil3 to form a salt। ठीक है, aniline plus L-Sil3 बन जाएगा salt NH2 plus L-Sil3 minus due to the positive charge on the N atom। Electrophilic substitution in the benzene ring is deactivated, hence aniline does not undergo the Friedel-Crafts reaction। उसके बाद कहता है कि ठीक है, ये हो गया। फिर छठवां में कहता है कि डायजोनियम सॉल्ट ऑफ द एरोमेटिक अमाइंस आर मोर स्टेबल देन दोज ऑफ द एलिफेटिक अमाइंस। तो इसमें आता है कि डायजोनियम सॉल्ट ऑफ द एरोमेटिक अमाइंस आर मोर स्टेबल देन दोज ऑफ द एलिफेटिक अमाइंस। द डायजोनियम आयंस अंडरगो द रियोनेंस एज फॉलो एज shown below। This rearrangement accounts for the stability of the diazoनियम ion, hence the diazoनियम salts of the aromatic amines are more stable than that of the aliphatic amines। आता है फतवा में क्या है, तो फतवा में है कि गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस इज प्रिफर्ड फॉर सिंथेसाइजिंग द प्राइमरी अमाइंस। तो कहता है कि गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस इज प्रिफर्ड फॉर सिंथेसाइजिंग द प्राइमरी अमाइंस। गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 1 degree amine only। 2 degree or 3 degree amines are not formed in the synthesis, thus a pure 1 degree amine can be obtained। Therefore, the Gabriel thelyamide synthesis is preferred for the synthesizing the primary amine।
आगे फिर है कि अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पिक के भी वैल्यू। तो इन द F2H5NH2 only the one F2H5 group is present, while in the F2H5 two F2H5 group are present. Thus the plus 5 fact is more in the F2H5 than in the F2H5NH2. Therefore the electron density over the n atom is more in the F2H5 than in the F2H5NH2. Therefore the F2H5 is more basic than the F2H5NH2. फिर ऐसा both the F6H5NH3 and the F6H5NH2 are less basic than the F2H5NH and the F2H5NH2 due to the delocalization of the lone pair in the former two. Further, among the F6H5NH3 and the F6H5NH2, the former will be more basic due to the plus T fact of the F3 group. Hence, the order of increasing basicity of the given compound is F2H5NH, F2H5NH2, F6H5NH3 और F6H5NH2 आता है. So we know that the higher the basic coefficient, lower is the pK value. तो F6H5NH2, F6H5NH3, F2H5NH2 फिर आता है F2H5NH आ जाता है. इसके बाद फिर आता है दूसरा क्वेश्चन है कि इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द F6H5NH2, F6H5NH3 के 2, F2H5 के 2NH और CH3NH2. तो इसमें क्या आ जाएगा, दूसरा में आता है कि F6H5NC3 के 2 is more basic than the F6H5NH2 due to the presence of the plus 5 fact of the 2C3 group in the F6H5NC3 के 2. Further, C3NH2 contains one C3 group while the C2H5 के 2NH contains two C2H5 group. Thus, the F2H5 2NH is more basic than the F2H5NH2. Now, the F6H5NC3 के 2 is less basic than the C3NH2 because of the minus R effect of the F6H5. Hence, the increasing order of the basic strength of the given compound हो जाएगा F2H5 के 2NH, फिर F3NH2, F6H5NC3 के 2 और F6H5NH2 आता है. फिर तीसरा में क्या आता है, तीसरा में आता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ एनिलीन, पैरानाइट्रो एनिलीन और पैराटोलिडीन में. तो ए में आ जाएगा इन द paratoluene, the presence of the electron donating phase group increase the electron density on the n atom. Thus, the paratoluene is more basic than the alanine. On the other hand, the presence of the electron withdrawing NO2 group decrease the electron density over the n atom of the para-nitroaniline. तो सबसे अधिक कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए, फिर आ जाएगा ये और फिर आ जाएगा ये, नहीं पहले ये फिर ये आ जाएगा, यानी कि पैराटोलिडीन पैरानाइट्रोएनिलीन आ जाएगा. उसके बाद फिर है नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है C6H5NH2, C6H5NCH3 और C6H5Ca2NH2. फिर तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा ये, ठीक है. फिर तो ये तो फैमिली ही अलग हो गया, तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा ये वाला, फिर हो जाएगा ये वाला और फिर हो जाएगा ये वाला. तो अगर इसमें देखें दूसरे में क्या आता है, ये तो फैमिली C6H5C2 नहीं, सबसे ज़्यादा जो होता है यही होगा, ठीक है. ऑर्डर जो आ रहा है ये वाला आ रहा है ऑर्डर, ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है ये वाला है 1 डिग्री वाला, नहीं ठीक है, ठीक है, हाँ सबसे ज़्यादा 1 डिग्री वाला है, फिर बीच में ये वाला आ जाएगा, उसके बाद फिर ये आएगा ऐसा इसलिए क्योंकि C6H5NH3 is more basic than the C6H5NH2. तो ये तो ठीक C6H5NH2 से ज़्यादा है due to the presence of the electron donating C2 group in the C6H5NH3. Again, in the C6H5NH3, C6H group is directly attached to the n atom. However, it is not so in the C6. ठीक है, इसमें in the C6H5NH3, the minus R effect of the C6H5 group decrease the electron density over the n atom. Therefore, the C6H5Ca2NH2 is more basic than the C6H5NC3. और ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है. इसके बाद फिर चौथा में आता है कि चौथा में क्या है कि इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ इन द गैस फेज ऑफ द F2H5NH2, F2H5 के 2NH और F2H5 के 3N और NH3. तो चौथा में क्या आ जाएगा, चौथा में जाके इन द गैस फेज देयर इज नो सॉल्वेशन इफेक्ट एज ए रिजल्ट द बेसिक स्ट्रेंथ मेनली डिपेंड्स ऑन द plus 5 fact. The higher the plus 5 fact, the stronger is the base. As for the greater the number of the alkyl group, the higher is the plus 5 fact. Therefore, the given compounds can be arranged in the decreasing order of the basic strength in the gas phase as F2H5 के 3N, फिर F2H5 के 2N और फिर F2H5NH2 और फिर NH3 आ जाता है, ठीक है. इसके बाद पर आता है कि इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट. तो बॉइलिंग पॉइंट का अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा कि the boiling point of the compound depend upon the extent of the H bonding present in that compound. The more extensive the H bonding in the compound, the higher is the boiling point. F2H3 के 2NH contains only one H atom, where the F2H5NH2 contains 2 H atom. Then the F2H5NH2 undergo the more extensive H bonding than the C3 के 2NH. Hence the boiling point of the F2H5NH2 is higher than that of the C3 के 2NH. Further, O is more electronegative than the N
The Fe2H5OH forms the stronger H bonds than the Fe2H5NH2. As a result, the boiling point of the Fe2H5OH is more higher than that of the Fe2H5NH2 and the Fe3H2NH. So yeah, again the given compounds can be arranged in the increasing order of the boiling point as follow. तो Fe2H5OH, फिर आ जाएगा Fe2H5OH, फिर Fe2H5NH2 और Fe3H2NH आ जाएगा। फिर छठा में आता है in the increasing order of the solubility Fe2H5NH2, Fe2H5K2NH और C6H5NH2। ठीक है, तो इसमें आता है the more extensive the H bonding, the higher is the solubility. The Fe2H5NH2 contains 2 H atoms, but the Fe2H5K2NH contains only 1 H atom. The Fe2H5NH2 undergoes more extensive H bonding than the Fe2H5K2NH. Hence, the solubility in the water of the Fe2H5NH2 is more than that of the Fe2H5K2NH. Further, the solubility of the amines decreases with increase in the molecular mass. This is because the molecular mass of the amines increases with increase in the size of the hydrophobic part. The molecular mass of the C6H5NH2 is greater than that of the Fe2H5NH2 and the Fe2H5K2NH. Hence, the increasing order of the solubility हो जाएगा Fe2H5NH2, फिर Fe2H5K2NH और C6H5NH2 आ जाता है, ये आता है। नेक्स्ट है कि हाउ विल यू कन्वर्ट द इथेनॉइक एसिड इनटू द मीथेन अमाइन। तो ये हो गया इथेनॉइक एसिड। FO करेंगे तो C3COCl, फिर NH3 करेंगे तो C3CONH2, Br2NH करेंगे तो C3NH3 आता है मीथेन अमाइन। फिर हेक्सेन नाइट्राइल इनटू द 1 अमीनो पेंटेन, तो ये हो गया हेक्सेन नाइट्राइल C5H11N, फिर H+H2 करेंगे तो आएगा C5H11 FO2 करेंगे तो आएगा C5H11COCl, NH3 एक्सेस करेंगे तो C5H11CONH2, फिर Br2 करेंगे तो आ जाएगा 1 अमीनो पेंटेन C5H11NH2 आता है। फिर आता है मिथेनॉल टू द इथेनॉइक एसिड, तो C3OH, फिर 5 करेंगे तो C3 आएगा। इथेनॉलिक एसिड NSN करेंगे तो C3 आएगा। H+H2 करेंगे तो C3 यानी इथेनॉइक एसिड आ जाता है। इसके बाद इथेन अमाइन इंटू द मिथेन अमाइन, इथेन अमाइन इंटू द मिथेन अमाइन। तो चौथा में आता है कि इथेन अमाइन ये हो गया। NN करेंगे तो आएगा C3CHN2+Cl माइनस, H2 करेंगे तो C3C2H और K-1 करेंगे तो C3COOH। अब NH3 एक्सेस करेंगे तो C3CONH2 आएगा, फिर Br2 करेंगे तो आएगा मिथेन अमाइन C3NH2। फिर आता है, ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। फिर आता है पाँचवा में इथेनॉइक एसिड इंटू द प्रोपेनॉइक एसिड। तो ये हो गया मेरा इथेनॉइक एसिड। LiLH4 इथाइल H2 करेंगे तो C3C2H, PCl5 करेंगे तो C3C2Cl आएगा। इथेनॉल NSN करेंगे तो C3C2CN आ जाएगा। फिर H+H2 करेंगे तो आएगा प्रोपेनॉइक एसिड C3C2COOH। फिर आता है मिथेन अमाइन हो गया, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोमीथेन टू दी, ठीक है, मिथेन अमाइन टू मिथेन अमाइन हो गया। फिर आता है नाइट्रोमीथेन टू इंटू दी डाईमिथाइल अमाइन, तो ये हो जाता है मिथेन अमाइन। NN2H करेंगे तो बनेगा C3N2+Cl माइनस, H2 करेंगे तो C3OH, फिर PCl5 तो C3Cl, इथेनॉलिक NFN करेंगे तो C3CN, फिर H2 ये करेंगे तो बनेगा इथेन अमाइन। फिर सातवां में आता है नाइट्रोमीथेन इंटू द डाईमिथाइल अमाइन, तो ये होएगा नाइट्रोमीथेन, ठीक है। CH3NO2 फिर नेचुरल करेंगे तो C3NO2 बन जाएगा। फिर CH3 को हीट करेंगे तो C3NC बन जाएगा। फिर Na करेंगे तो आ जाएगा डाईमिथाइल अमाइन C3NHC3। फिर आता है प्रोपेनॉइक एसिड इंटू द इथेनॉइक एसिड, तो ये होगा प्रोपेनॉइक एसिड। NH3 एक्सेस कर देंगे तो बनेगा C3C2CONH2, Br2 कर देंगे हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन C3H3C2NH2, फिर NN2H करेंगे तो बना C3C2N2+Cl माइनस, फिर 2 करेंगे तो C3C2OH बनेगा। फिर K-H+ करेंगे तो बन जाएगा इथेनॉइक एसिड। सही है। इसके बाद फिर आता है क्वेश्चन कि डिस्क्राइब ए मेथड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द टर्शियरी अमाइन, आल्सो राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द टर्शियरी अमाइन्स कैन बी आइडेंटिफाइड एंड डिस्टिंग्विश्ड बाय द हिंसबर्ग टेस्ट। इन दिस टेस्ट द अमाइन्स आर फॉलोड टू रिएक्ट विद द हिंसबर्ग रिएजेंट। Benzene sulfonyl chloride 6H5O4 The three type of the amines react differently with the Hinsberg reagent. Therefore, they can be easily identified using the Hinsberg reagent. Primary amines react with the benzene sulfonyl chloride to form the N-alkyl benzene sulfonide amide which is soluble होता है, ठीक है। तो 1 डिग्री जब करेगा अमाइन तो ये बनेगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन withdrawing sulfonyl group in the sulfonamide. Each atom attached to the nitrogen can be easily released as proton, so it is acidic and dissolved in alkali. Secondary amine react with the Hinsberg reagent to give a sulfonamide which is insoluble in alkali. तो ये होगा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड डाइमिथाइल अमाइन, तो NN डाइमिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड बन जाएगा जो कि इनसोलुबल इन द अल्कली होता है। तो देयर इज नो H atom attached to the N atom in the sulfonamide, therefore it is not acidic and insoluble in the alkali. फिर आता है on the other hand tertiary amine do not undergo the Hinsberg reagent at all. तो सेकेंडरी वाला इनसोलुबल में आता है, टर्शियरी वाला रिएजेंट रिएक्ट नहीं करता है। फिर आता है कि राइट फुटनोट ऑन द कार्बोलामाइन रिएक्शन। तो कार्बोलामाइन रिएक्शन is used as a test for the identification of the primary amine when the aliphatic and aromatic primary amines are heated with chloroform and ethanolic potassium hydroxide. Carbylamines or the isocyanates are formed. These carbylamines has very
अनप्लेन्ड ऑर्डर्स। सेकेंडरी यानी टर्सरी अमाइन डू नॉट रिस्पॉन्ड टू दिस टेस्ट। तो प्राइमरी अमाइन हो गया क्लोर पंप विच फील्ड जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो बन जाएगा कार्बन अमाइन RnC+3 के फील +3 H2। फॉर एग्जाम्पल मिथेन अमाइन C3NH2 + CH3 + 3QH तो बन जाएगा मिथाइल कार्बन अमाइन और द मिथाइल आइसोफेनाइड। फिर आता है डाई एडिटाइजेशन। तो aromatic primary amines react with the nitrous acid prepared in situ from the NaNO2 and the mineral acids such as the H-Field at low temperature to form the diazoxide salt. This conversion of the aromatic primary amine into diazoxide salt is known as the diazotization. For example, on return with the NaNO2 and the H-Field at 247 to 430 Kelvin, aniline produces benzene diazoxide chloride with NaCl and the H2 as the byproduct. तो ये एनिलीन हो गया NaNO2 प्लस H-Field करेंगे तो बन जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्लस NaCl प्लस H2 बन जाएगा। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो benamide is treated with an bromine in sulfone of the ethanoic sulfone of the sodium hydroxide, a primary amine with one carbon atom less than the original amide produced. This degradation reaction is known as the Hofmann-Bromide reaction. This reaction involves the migration of an alkyl or the aryl group from the carbonyl carbon atom of the amide back to the nitrogen atom. तो ये अमाइड हो गया R2NH2 प्लस Br2 प्लस NH, ये हो गया प्राइमरी अमाइन RNH2 प्लस NH2 NBr प्लस H2। तो इथेन अमाइड आ गया। फिर आता है ये मिथेन अमाइन आया था C3NH2। बेंजाइन अमाइड फिर क्या बन जाता है एनिलीन। इसके बाद फिर बात करते हैं कपलिंग रिएक्शन की। तो द रिएक्शन ऑफ द जॉइनिंग टू एरोमेटिक रिंग्स थ्रू द एन डबल बॉन्ड एन इज नोन एज द कपलिंग रिएक्शन। एरीन डाइजोनियम सॉल्ट विद द बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट रिएक्ट विद द फिनोल और द एरोमेटिक अमाउंट्स टू फॉर्म द कलर्ड एजो कंपाउंड्स। तो हो गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्लस फिनोल तो बन जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोन यानी ऑरेंज डाई बन जाता है। फिर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्लस एनिलीन तो बन जाएगा पैरा अमीनो एजोबेंजीन यानी येलो डाई बन जाता है। It can be observed that the para positions of phenol and aniline are coupled with the hydrogen salt. This reaction proceeds through the electrophilic substitution. फिर आता है ammonolysis। तो when an alkyl or the benzyl halide is allowed to react with the ethanolic solutions of the ammonia, it undergoes the nucleophilic substitution reaction in which the halogen atom is replaced by an amino group. This process of the cleavage on the carbon halogen bond is known as the ammonolysis। तो अमोनिया हो गया फिर alkyl halide बन जाएगा substituted ammonium salt। When this substituted ammonium salt is treated with a strong base such as the sodium hydroxide तो अमाइन है जो बन जाता है। यहाँ पर अमाइन बन गया। दो द प्राइमरी अमाइन इज प्रोड्यूस्ड एज द मेजर प्रोडक्ट। दिस प्रोडक्ट प्रोसेस प्रोड्यूस ए मिक्सचर ऑफ द प्राइमरी सेकेंडरी एंड द टर्शियरी अमाइन आल्सो ए क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट इज फॉर्म। तो RnA2 RX तो R2NH RX R3N R4N प्लस X माइनस यानी क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा। फिर आता है एफाइटिलेशन। क्या होता है? तो एफाइटिलेशन और द इथेनोलेशन इज द प्रोसेस ऑफ द इंट्रोड्यूसिंग एन एफाइटल ग्रुप इनटू ए मॉलिक्यूल। ये हो गया एफाइटल ग्रुप। Aliphatic or the aromatic primary and the secondary amines undergo the acetylation reaction by nucleophilic substitution when treated with an acid colloid anhydride for the esters. This reaction involves the replacement of the hydrogen atom of the NH2 or the NH group by the acetyl group, which in turn leads to the production of the amides. To shift the equilibrium to the right hand side, the HCl formed during the reaction is removed as soon as it is formed. This reaction is carried out in the presence of the base such as the pyridine, which is stronger than the amine. तो N-methyl मैन फिर एसिटाइल क्लोराइड तो क्या जाएगा NN डाइमिथाइल इथेन अमाइन बन जाएगा। फिर आता है कि बेंजीन अमाइन ठीक है प्लस एसिटाइल क्लोराइड तो बन जाएगा N फिनाइल इथेन अमाइन ठीक है। बेन अमाइन रिएक्ट विद द बेंजोइल क्लोराइड द रिएक्शन नोन एज द बेंजोइलेशन। फॉर एग्जांपल C2H5Na2 इथेन अमाइन प्लस बेंजोइल क्लोराइड तो बन जाएगा N इथाइल बेंजाइमाइड। फिर आता है गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। तो आता है गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस वेरी यूजफुल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ aliphatic primary amines. It involves the treatment of the thalliamide with ethanolic potassium hydroxide to form the potassium salt of the thalliamide. This salt is further heated with the alkyl halide followed by the alkaline hydrolysis to yield the corresponding primary amine. तो ये थैलियमाइड KOH मतलब पोटेशियम सॉल्ट ऑफ द थैलियमाइड। यहाँ पर आ जाएगा N अल्काइल थैलियमाइड NOH हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो सोडियम सॉल्ट ऑफ थैलियमाइड आ जाएगा। फिर आ जाएगा RNH2 यानी 1 डिग्री अमाइन। नेक्स्ट है कि अकम्प्लिश द फ्लोइंग कन्वर्जन। पहले हमको नाइट्रोबेंजीन से बनाना है बेंजोइक एसिड है ना। तो NO2H2PD कर देंगे तो ये जाएगा NH2 एनिलीन NN2HCl कर देंगे तो बनेगा NCl माइनस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड CN कर देंगे तो CN बेंजोन नाइट्राइल फिर H2 प्लस कर देंगे तो बन जाएगा क्या फिडोलोएच। फिर उसके बाद हमको बनाना है बेंजीन से बनाना है मेटाब्रोमोफिनॉल तो HNO3H2 सुपर कर देंगे तो NO2 नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। फिर Br2 कर देंगे तो NO2Br M ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। FNaCl कर देंगे तो NH2Br यानी कि M ब्रोमो एनिलीन बन जाएगा। फिर Na2HCl कर देंगे 273 केल्विन पर N ये बन जाएगा डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा। फिर डाइल्यूट इसे ऊपर कर देंगे तो बन जाएगा M ब्रोमो फिनॉल। इसके बाद फिर आता है बेंजोइक एसिड FOCl2 कर देंगे तो COCl बन जाएगा। बेंजोइल क्लोराइड फिर Na3 कर देंगे तो FCNA2 बन जाएगा। फिर बेंजामाइड बेंजामाइड डिग्रेडेशन कर देंगे Br2NH तो बन जाएगा NH2 यानी कि एनिलीन।
इसके बाद फिर आता है एनिलीन, Br2 के वजह H2O कर देंगे तो बन जाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, फिर Na2H4 कर देंगे तो बन जाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, HbO4 कर देंगे तो N2BO4 माइनस बन जाएगा और फिर हीट कर देंगे तो बन जाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो बेंजीन। इसके बाद फिर आता है कि हमको बनाना है बेंजाइल क्लोराइड से 2 फिनाइल इथेनामाइन, तो बेंजाइल क्लोराइड लिए, इथेनॉलिक एसिड लिए, बन जाएगा फिनाइल इथेनामाइन नाइट्राइल, फिर यहाँ पर बन जाएगा 2 फिनाइल इथेनामाइन। फिर आता है क्लोरोबेंजीन HNO3H2 नाइट्रोफोन करेंगे तो बन जाएगा 2 पैरा नाइट्रोबेंजीन मेजर प्रोडक्ट और ऑर्थो नाइट्रो ब्रोम क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। फिर पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन H2PD इथेनॉल करेंगे तो बन जाएगा पैरा क्लोरो एनिलीन। फिर आता है एनिलीन C3 पैरिडीन ये लेंगे तो बन जाएगा एन फिनाइल इथेनामाइड एफिटामाइड, Br2C3 फिर करेंगे तो बन जाएगा पैरा ब्रोमो, ठीक है, एफिटा एनिलीन यानी मेजर प्रोडक्ट, फिर आ जाएगा पैरा ब्रोमो एनिलीन आ जाता है इससे। नेक्स्ट है कि बेंजीन अमाइड हो गया, फिर Br2NOH हॉफमैन ब्रोमाइड करेंगे तो बन जाएगा एनिलीन, फिर Na2H फिल करेंगे तो N2 प्लस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा, फिर इससे बेंजीन बन जाएगा और C3 फिल N फिल करेंगे तो बन जाएगा C3 यानी कि टॉलिन, फिर इसमें Na2H फिल करेंगे तो बन जाएगा N2 प्लस फिल माइनस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, C करेंगे तो CN बेंजोन नाइट्राइल, फिर H2 करेंगे तो C2H बेंजीन एसिड, फिर LH पर H2 करेंगे तो बन जाएगा C2H बेंजोल अल्कोहल बन जाएगा। फिर आता है कि CH3 C2 आयनेशन कर देंगे तो बन जाएगा C3 फिर OH कर देंगे तो बन जाएगा C3 बन जाएगा प्रोपेन अमाइड, ठीक है ना, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस होता है। फिर यहाँ पर NOH Br2 कर देंगे तो बन जाएगा इथेन अमाइन। नेक्स्ट है कि 6H5 N2 प्लस CN तो बन जाएगा 6H5 फिर H2 प्लस 6H5 फिर OH बन जाएगा बेंजोइक एसिड, फिर हीट कर देंगे तो बन जाएगा 6H5 CONH2। आता है C3 Br के फिन तो C3 फिन बन जाएगा, फिर LH कर देंगे तो C3 NH2 बन जाएगा, फिर आ जाएगा 0 डिग्री H0 पर बन जाएगा C3 OH यानी कि प्रोपेन 1 वाला आ जाएगा। फिर आता है C6H5NO2 FH फिल करेंगे तो बन जाएगा C6H5NH2 एनिलीन, फिर Na2H फिल कर देंगे हीट तो C6H5N2 प्लस फिल माइनस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, उसके बाद H2O हीट H प्लस करेंगे तो C6H5OH यानी कि फिनॉल बन जाता है। नेक्स्ट है कि CH3 फिडोल NH2 हीट करेंगे तो बन जाएगा C3CONH2 इथेनामाइड, NOBr करेंगे तो C3NH2 मिथेनामाइड, Na2H फिल करेंगे तो बन जाएगा C3OH मिथेनॉल, फिर C6H5NO2 FH फिल करेंगे तो बन जाएगा C6H5NH2 एनिलीन, HNO2 273 करेंगे तो बन जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड C6H5N2 प्लस फिल माइनस आ जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी आइसोबेंजीन ये बन जाता है। अगला सवाल है कि an aromatic compound A on treatment with aqueous ammonia and the heating forms compound B, which on heating with Br2NaOH forms the compound C of the molecular formula C6H1N. Write the structure of the IUPAC names of the compound A, B and C. तो आता है कि it is given that compound C having the molecular formula C6H1N is formed by heating the compound B with Br2NaOH. This is a Hofmann-Bohrmann degradation reaction. Therefore the compound B is amide and compound C क्या हो जाएगा amine हो जाएगा. The only amine having the molecular formula C6H1N is aniline. ठीक है, देखो द कंपाउंड बी मस्ट बी बेंज एमाइड यानी कि C6H5CONH2 आ जाएगा। फिर आता है कि फर्दर बेंज एमाइड फॉर्म बाय हीटिंग कंपाउंड ए विथ एक्वस अमोनिया, देखो द कंपाउंड ए मस्ट बी क्या हो जाएगा बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड में एक्वस एनर्जी के साथ हीट करेंगे तो बन जाएगा CONH2 बेंज एमाइड, फिर Br2 क्या हो जाएगा तो NH2 यानी कि बेंजीन अमाइन आ जाएगा। नेक्स्ट है कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन C6H5NH2 CH3 प्लस अल्कोहलिक OH, तो C6H5NH2 CH3 प्लस अल्कोहलिक OH का विलयमान रिएक्शन बनाएगा तो बनेगा H2O प्लस की फिल और C6H5NC यानी कि फिनाइल एफोफानाइड, फिर C6H5N2 प्लस फिल माइनस H3PO2 प्लस H2O, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड H3PO2 H2O तो बन जाएगा बेंजीन प्लस N2 प्लस H3PO3 प्लस HCl, फिर C6H5NH2 प्लस H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड तो बन जाएगा एनिलीन प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2O4 बन जाएगा एनिलियम हाइड्रोजन सल्फेट। फिर इसमें आता है C6H5N2 CH2H5 तो बन जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्लस इथेनॉल, तो बेंजीन प्लस इथेनॉल बन जाएगा। इसके बाद फिर आता है यहाँ पर बचाव में C6H5NH2 Br2 तो बन जाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। फिर आप नेक्स्ट है C6H5NH2 CH3 तो ये बन जाएगा एनिलीन प्लस एफेटिक एनहाइड्राइड तो बन जाएगा एन फिनाइल इथेनामाइड। फिर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड HbF4Na2 से हीट करेंगे तो बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन प्लस NaBF4। नेक्स्ट है कि वाई कैन नॉट एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन बी प्रिपेयर्ड बाय द गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, तो गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एलिफैटिक प्राइमरी अमाइन, इट इन्वॉल्व्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN2 और द अल्काइल हैलाइड्स बाय द एनायन फॉर्म्ड बाय द थैलीमाइड। तो ये हो गया थैलीमाइड, KOH करेंगे तो N प्लस के माइनस, RX करेंगे तो N अल्काइल थैलीमाइड बनेगा, फिर NH कर देंगे तो RNH2 1 डिग्री अमाइन बनेगा। बट एराइल हैलाइड्स नॉट अंडरगो द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद द एनायन फॉर्म्ड बाय द थैलीमाइड, तो इसमें कोई रिएक्शन है जो नहीं होता है, हेंस द एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस प्रोसेस। फिर आता है कि व्हाई इज द रिएक्शन एरोमेटिक एंड एलिफैटिक प्राइमरी अमाइंस विद नाइट्रस एसिड,
The aromatic amines react with the native sulfate prepared in situ from the NaR2 and the mineral acid such as the HCl at 273 Kelvin to form the stable aromatic diazoxide salt NaCl and H2O. NH2 aniline plus native sulfate Na2 तो बनेगा Na2 plus HCl तो बनेगा बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड N2 plus Cl minus NaCl plus H2O. फिर आता है कि aliphatic primary amines react with the native sulfate prepared in situ from the NaR2 and mineral acid such as the HCl to form the unstable aliphatic diazoxide salt, which further produce the alcohol and natural with the evolution of the N2 gas. फिर आता है RNH2 aliphatic primary amine, फिर native sulfate HNO2 Na2 plus HCl तो बनेगा aliphatic diazoxide salt Rn2 plus Cl minus, तो H2 करेंगे तो ROH और N2 और HCl बन जाएगा. इसके आगे फिर आता है कि give the plausible explanation for each of the following. Why are amines less acidic than the alcohols of the comparable molecular masses? तो amines undergo the protonation to give the amide ion RNH2 R amide ion बन जाएगा plus H plus. फिर आता है कि why do primary amines of the higher boiling point and the tertiary amine? Similarly, alcohol loses a proton give the alkoxide ion the ROH. तो alkoxide ion बन जाएगा RO minus plus H plus. तो कहते हैं in an amide ion negative charge is on the N atom where is the alkoxide ion. The negative charge is on the O atom. Since O is more electronegative than the N, O can accommodate the negative charge more easily than N. As a result, the amide ion is less stable than the alkoxide ion. Hence, the amines are less acidic than the alcohols of the comparable molecular masses. So, why do primary amines have the higher boiling point than the tertiary amine? So, in the molecule of the tertiary amine, there are no H atoms, but in the primary amines, two hydrogen atoms are present. Due to the presence of the H atoms, primary amines undergo the extensive intermolecular H bonding. तो ये primary amine हो गया, tertiary amine हो गया. As a result, extra energy is required to separate the molecules for the primary amine. Hence, the primary amines have the higher boiling point than the tertiary amine. Why are aliphatic amines so stronger than the aromatic amines? तो कहता है कि due to the minus R effect of the benzene ring, the electrons of the N atoms are less available in the case of the aromatic amine. Therefore, the electrons on the N atom is aromatic amines cannot be donated easily. This explains why aliphatic amines are stronger base than the aromatic amines. क्लियर हो गई. तो यहाँ पर होता है इसका अमाइंस का एनसीईआरटी का सॉल्यूशन चैप्टर कंप्लीट.